टॉपिक है जनाब, उसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को करवाया था डू वाइल लूप का, करवाया था स्विच का, वाइल का करवाया था। ठीक, आज फॉर लूप करनी क्योंकि वो रह गई थी। फॉर 1D एरेज एंड पॉइंटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है एरे और पॉइंटर्स का डिफरेंस, देन आई एम गोइंग टू टेक यू इनटू डीप विद फॉर लूप। इसके बाद मैं आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा फॉर लूप के अंदर। So let's see. Without any further delay, let's see the major difference between arrays and pointers. One thing is new for my old members as well in this video, so I must recommend them to watch this video of mine as well, because one thing is not seen by me. अच्छा, वो जो चीज़ है वो मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, तो मैंने जब बाद में देखी तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो इस वजह से जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं वो भी इस वीडियो को वॉच करें, मैं बल्कि बता ही दूँगा ग्रुप में जब वीडियो शेयर होगी। तो अब जो बिगनर्स लोग हैं उनके लिए मैं एक मेमोरी बनाऊँगा और उसको हम एरे के तौर पर समझेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की मुझे ज़रा तवज्जो की ज़रूरत होगी। आराम से जो मैं लफ्ज़ बोलता जाता हूँ उनको आप सुनते जाएँ तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नाउ, as I told you earlier, this is just like a memory, which is a RAM. RAM is a volatile memory. What is meant by volatile? It stores data temporarily. Once your PC or machine switch off or the power is gone, no data is retained. All the data is lost. That is meant by volatile memory. I hope now you get the word volatile. So here is our array. This thing which is starting from here is known as index, or you can simply say position, where the value which is assigned in the variable is stored. Alright, so this is index and this is the position. Both words can be used for this. Let's suppose this is an array of, let's name this array as car. Okay, we are only supposing this. It doesn't matter that this is a real car. It is just we assume this array name is car for the sake of understanding. Now, array means all the data types, all the values are same. If you are working with integer data type too, then every value or everything in this array must be of integer. It does not allow in other boxes like here you have 69, then you have boolean value. It will restrict, it will not, it will against the array. Alright, for this purpose you are going to use structure construct, which is used to store different data types. It is just like array, but it allows you to store different data types as well. So this is basically the difference between array and, so it is not allowed. If you choose integer data type, everything till the end remain the same. It doesn't mean that in the center or in the last stage it is going to change the data type as well. No, it does not allow in array. You must use the same data type as you described earlier or at later stage. Okay, so this is how. Now this is not the right for it. Every data must be of integer data type. If it is float data type, then it remain float throughout the array. It does not change itself. This is the basic point in array. कहने का मकसद ये है कि जो एरे है वो थ्रू आउट एक ही डेटा टाइप है मुश्तमिल है। ये नहीं है कि बीच में आपके पास करैक्टर एक आ गया, बीच में बूलियन आ गया इस तरह, फिर बीच में स्ट्रिंग आ गई जैसे मैं अपना नाम लिख दूँ। ठीक, ये काम आपने नहीं करना, ये इसके ख़िलाफ़ होगा। तो बाकी जो मैंने आपको बात बताई, आई होप कि वो अंग्रेज़ी में आपको समझ आ गई होगी, उसमें मुझे दोबारा रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फॉर द पॉइंटर. Pointer holds the memory address of this value. Where it resides or how I am going to know where it is located.
what is meant by address. In real life, if you do not know the address of your friend, you are not going to meet him because you did not know where he lives or where he resides. So this is about memory location. If you do not know the address where the data is located, you did not know where it is present inside the RAM or the location of memory, which is basically your RAM. So this is basically meant by memory location. I hope now you get the idea. अगर आपके दोस्त का पता आपको नहीं पता है तो आप उस तक पहुंच भी नहीं सकते, ठीक है, और ना आप उससे मुलाकात कर सकते हैं। क्यों? आपको पता ही नहीं हो रहता है किधर है या कहाँ वो रिहाइश कर चुका है या जो भी है मामला, ठीक। तो ये मेमोरी लोकेशन है कि ये जो वैल्यू है इसका एक एड्रेस होगा जो हमें ये बताएगा कि इस एड्रेस पे फ़लाँ वैल्यू पड़ी है। इसको हम पॉइंटर्स का नाम देते हैं। पॉइंटर्स हमें मेमोरी एड्रेस बताता है और एरे हमें सेम डेटा टाइप को स्टोर करने की फैसिलिटी देता है कि एक जैसे डेटा टाइप बार बार स्टोर करने के बजाय हमें एक बड़ी सी एरे बनाए, उसी को स्टोर करें, उसके अंदर कितने डेटा टाइप हमने एक जैसे स्टोर करने हैं और बस अपना काम चलाएं। This is how an array and pointer differs from each other. I hope you get the idea better now and things are more clear to you guys. Okay, so this is the difference between arrays and pointers. Now let's get back to our for loop. For loop is also known as count control loop without condition because it is working on repetition, number of times we know how many outputs are numbers we are going to repeat. That's why it is known as count control loops. If you are unaware, then it is not known count control loop, but we are aware of how many number of times we are going to output or repeat something. That's why it is count control loop. So basic idea of, I hope this for loop is clear to you guys now. Now here are some dummy programs. Let's understand one by one each of them so you have better understand how this loop actually is going to work. As you guys know, these two lines are not going to compile. The code is going to run from this main function inside the main body. From here the code is going to compile and it is following the top to bottom or bottom to top approach. Alright, every language need to follow bottom to top or top to bottom approach for running the code. This is how programming works. And if you say that compiler and interpreter how they are going to work, scenarios for all the languages are same, top to bottom and bottom to top, but compiler compiles whole code at once but interpreter reads line by line. Now let's see how this loop is going to work. मेरे ख्याल से अच्छा जनाब, ये तो बात होगी फॉर लूप की। अब मैं एक फैक्टोरियल प्रोग्राम आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ये बोली ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारा आवाज़ रिकॉर्ड होगी, दोबारा बंद करके दो। Alright, here is our factorial program. What is meant by factorial? First of all, we need to understand factorial. Factorial means multiplying single digit by itself, not by itself. Let's take an example. If we are going to take the factorial of 5, what we are going to do? We are going to multiply it with the previous one. So the formula for the factorial is n minus 1. Let's see, 5 and now minus 1 will be 4 multiplied by 4, and now again you are going to minus 1, 3, 2 and 1. After that you are going to get the factorial of this number. So this is the basic idea of factorial, or what is factorial is. So now let's see how we are going to write factorial program. Int num, okay,
Let's see if here is any program related to factorial. If it is not there, I'm going to write it by myself. It doesn't matter if it is not here. Okay, number which are you going to use for factorial, and for factorial you're going to use 7. Okay, let's see what is the answer of this number is 7. This means that factorial 5040 is the right answer of this number. Now for alright, for int data type with I सेमीकोलन, इसके बाद आपने कहाँ तक लेके जाना है इसको, लेस देन इक्वल्स टू फैक्टोरियल तक, ठीक है। फैक्ट लिख देते हैं फैक्टोरियल की शॉर्ट फॉर्म, और आई को हम इंक्रीमेंट करा देंगे। उधर हमने इंक्रीमेंट देखा था कि वाइल में हम किस तरह करते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल लास्ट में हम करते थे, बट इन दिस सिनेरियो हम इधर इसके साथ ही करते हैं। फिर पैरेंथेसिस खोली जाती हैं, ये वाली जो ब्रैकेट होती है, आई को अगर करना है ठीक, नहीं तो ये एम्प्टी आप सेमीकोलन लगाते हैं अगर आपने इसको इनिशियलाइज़ नहीं करना। ऊपर पहले से कोई आप कर चुके हैं और उसी को इसमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक, फिर उसी नंबर को जो चीज़ आपने ऊपर इस्तेमाल की है ना, उसी को लास्ट में इंक्रीमेंट भी कर देंगे। उसके बाद हमारे पास करली ब्रैकेट जिसमें हमारा कोड रन करता है। अब फैक्ट को हम क्या करेंगे, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, ऑलराइट। और यहाँ पर करेक्टर आउट हम कर देंगे जनाब क्या, फैक्ट एंड लाइन पे चले जाओ। दिस इज द बेसिक फैक्टोरियल प्रोग्राम। अगर लॉजिक मेरा गलत भी हो, खैर इस बार को हमें नहीं देखना, वो आपने खुद सही करना है। मेरा काम है आपको सिर्फ सिखाना कि ये लूप काम कैसे करती है, जैसे बेसिक लिखने का स्ट्रक्चर है। मैं खुद भी एक बिगिनर, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, इंसान है, गलतियाँ होती हैं। तो ये आंतर कुछ अजीब व गरीब सा है, इसको आप देख लें क्या गलती हुई है, ठीक है। तो ये तो फॉर लूप का बेसिक डमी प्रोग्राम था। अब अगर हम इस चीज़ के ऊपर आएंगे, हमें कोई टेबल प्रिंट कराना है, तो वो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। टेबल वैसे मैं आपको इसमें करा चुका हूँ, टेबल ऑफ फिक्स नंबर। उसमें मैंने आपको बताया था कि यूज़र से इनपुट लेके हम काम कर रहे हैं, ऐसे ही है, बट इसमें हम एक फ़िक्स नंबर के साथ खेलेंगे विदाउट यूज़र इनपुट। अब इसमें जो भी नंबर मैं फ़िक्स करूँगा उसी की तरफ जो है टेबल प्रिंट होगा, और किसी चीज़ का टेबल प्रिंट नहीं होगा। तो लेट्स सी, इधर जो उसने चीज़ ली हुई है काउंटर के नाम से, तो मैं यहाँ पर नाम लिखूँगा या टेबल लिख देते हैं, टेबल इक्वल्स, ठीक है। इस टेबल का मैं कर देता हूँ जनाब 256, ओके। कि इस 256 का मुझे टेबल चाहिए। अब मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा, बट थोड़ा सा मुझे नीचे जाना है ताकि सेंटेंस खूबसूरत नज़र आए। अब इधर मैं इंट करूँगा जनाब नहीं, क्योंकि मैंने टेबल को ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं काउंटर को किस बराबर रखूँगा, 1 के, क्योंकि ये 1 से 10 तक जाना चाहिए। फिर इस बार काउंटर लेके जाएगा इस तरह, ठीक है। अब काउंटर की जगह मुझे जो वेरिएबल का मैंने नाम लिखा है वो मुझे चेंज करना है। कि मैंने टेबल लिखा तो मुझे टेबल ही लिखना है, काउंटर यहाँ लिखूँगा तो एरर आ जाएगा। फिर लेस देन और इक्वल्स टू आप कर दें 10, क्योंकि मुझे 10 तक लेके जाना है। और अब इस टेबल में आप कर दें जनाब टेबल +1, ये भी वही तरीका इंक्रीमेंट करने का, ठीक। तो आज हमने एक नया तरीका भी सीखा। इसके बाद जब आप ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट आप जैसे ही खोलेंगे तो आपने इस ब्रैकेट में लिखना है फैक्टर आउट दिस, इन्वर्टेड कामा में आपने मल्टीप्लाई का साइन डालना है, फिर टेबल वेरिएबल लिखना है, ठीक है।
फिर आपने दोबारा इन्वर्टेड कॉमा और फिर इक्वल्स टू में थोड़ी सी आप स्पेस भी दे रहे हैं, ठीक, ताकि कर्सर थोड़ा सा आगे चला जाए। फिर दोबारा से ये और फिर टेबल का नाम जो वेरिएबल हमने इस्तेमाल किया और न्यू लाइन में या तो ये लिख दें, ठीक है, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, एस्केप करेक्टर, ठीक, सेम मीनिंग रखते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक डमी कोड था टेबल का। लेट्स रन इट एंड सी व्हाट इज गोइंग टू, लेट्स सी इट्स आउटपुट। एज यू कैन सी 1 2 3 से 10 तक आ गया, बट यहाँ पर मुझे लिखना था 256 मल्टीप्लाई बाय टेबल इक्वल्स टू। अच्छा, टेबल के साथ मैंने एक काम किए ही नहीं है, इसको मुझे इस पर मल्टीप्लाई भी करना था, ठीक है। इधर आई नहीं है, अब मुझे इधर मल्टीप्लाई बाय 256 करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास नंबर 256 है। तो इसको मैं डायरेक्ट टेबल इनटू टेबल अगर कर दूँ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आंसर ठीक नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 256 करना पड़ेगा। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया ताकि आप ये ना समझें कि इसकी मैंने वैल्यू डाल दिया तो अगर मैं टेबल इनटू टेबल करूँगा तो वो यही होगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। कुछ जगह पे मैनुअल काम भी हमें करना पड़ता है। तो ये आप देखें, अब जाकर मेरे पास रिज़ल्ट सेम आया और ठीक आया। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। ठीक, तो ये पहले हमारा कोड था फॉर लूप का। ये बात थी फॉर लूप के हवाले से। अब फॉर लूप तो इतनी कोई मुश्किल नहीं है, तो इसलिए आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मज़ीद इसमें इन्होंने जो चीज़ें दी हुई हैं वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, उनको आप एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो आप मुझे बता दें। उसी तरह से सिर्फ उन्होंने अब एक नया कॉन्सेप्ट निकाले, एक मैक्स मल्टीप्लायर का और एक उसका निकाला है, क्या कहते हैं, मेन मल्टीप्लायर का, जिसमें हमें पहले नंबर लिखना है टेबल का और मल्टीप्लाई किससे कितने तक करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें उसमें नहीं आई हैं, अदरवाइज बाकी वही सेम कोड है। फिर यूज़र से इनपुट ली जाएगी, फिर उसके बाद फॉर लूप का कॉन्सेप्ट उसी तरीके से है, नथिंग इज़ चेंज राइट नाउ, ठीक। दो चीज़ें नहीं आएंगी, सिर्फ एक यूज़र से इनपुट लेने वाला काम। अच्छा, अब बात होगी एरे की। एरे को थोड़ा सा मैं मज़ीद आप लोगों को बताऊंगा। फॉर लूप के बाद एरे, पॉइंटर्स, अच्छा एक चीज़ रहेगी फंक्शन। फंक्शन कहते हैं जनाब, अब आगे ये बात तो हम बात करेंगे फंक्शंस की। सबसे पहले ऑलरेडी मेड मॉड्यूल एंड वेट फॉर कॉल टू एग्जीक्यूट, ठीक है। अगर डिफाइन मैं करूँ, ऑलरेडी मेड से क्या मुराद है, पहले से ही बने हुए, ठीक है। रेडीमेड फार्मूलाज भी आप कह सकते हैं, ये टेम्पलेट्स भी, या मॉड्यूल्स भी, छोटे छोटे कोड्स जो होते हैं, जिनका सिर्फ इंतज़ार होता है कि हमें कॉल किया जाए तो हम जिस मकसद के लिए हमें बुलाया गया या जिस पर्पस के लिए हमें जो इनपुट दी गई है हम उसको अमल कर सकें। जैसे रिमोट कंट्रोल की अगर मैं एग्जांपल दूं, हर बटन के नीचे एक फंक्शन लिखा हुआ है, वॉल्यूम अप डाउन करना है तब भी आप बटन दबाएंगे तो फंक्शन कॉल होते हैं और उसने वॉल्यूम अप डाउन करना होता है, ठीक। फंक्शंस आर एवरीवेयर अराउंड अस बट वी आर नॉट really realize them. If you observe in your surrounding, we are already surrounded by millions of functions. But first you need to observe and realize how it is possible that there are billions of functions around us. Okay? अच्छा, फंक्शन की तो बात हो गई। अब एक बहुत गंदी बात यहाँ पर जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, स्टूडेंट्स की जो पहली गलती होती है कि मेन फंक्शन के अंदर ही फंक्शन। इट इज़ रॉन्ग थिंग टू declare a existing function inside a new. If you try to do this type of thing inside existing function, like void is a data type which does not return anything, okay, it does not return anything. After that you write the name just like display diagonal. Now this type of thing, if the first letter is small and the second letter of the string is capitalized, it is known as camel case. Okay. After this camel case, name of the variable, the identifier,
and you are going to open parenthesis. This is wrong. You cannot declare a new function inside a function. It is a bad and wrong habit of doing so. So please avoid this error. If you are going to create a function, instead of doing this thing inside of the existing function, you will need to declare it above it or below it. You have two options, above or below. If you are going to declare the functions at the top of the program, then you are going to call it inside the main function. Same scenario goes at the bottom, but it does not recognize where the function resides, so you are going to use prototyping. What is meant by prototyping? You are referring that compiler in our code or program that we are writing, function is present somewhere after the main function. This is meant by prototyping. We are referring that it is present below the main function. Then he will recognize the function and he will know, okay, if you are saying so that it means that it is present there, then it is not going to give you any kind of error. Let me give you an example of, let me tell you. Okay, अभी मैं परफॉर्म करूँगा तो आपको बात समझ आ जाएगी, इसलिए टेंशन नहीं लेनी. अब एक बेसिक फंक्शन लिखते हैं जनाब, जिसका काम है वाइड में लिखता हूँ, वाइड के साथ मैंने टॉक लिख दिया और इसके बाद ये. ठीक, अब इस फंक्शन को मैं कहता हूँ कि ये करूँ और कह देते हैं इसको आई एम अ टॉकिंग फंक्शन, कि मैं बोलने वाला एक फंक्शन हूँ. ठीक, उसके बाद इसको मैं ये कर दूँगा. लेकिन अब मैं आउटपुट करूँगा तो इसने कुछ भी मुझे नहीं शो करना. क्यों? आपको मैंने पहले बोला था कि फंक्शन किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे, कॉल करने का. जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तो उसने रन नहीं होना. लेट्स सी. As you can see guys, nothing is showing up. Why? Because this function is waiting for us. If we are not going to call him, he is not going to show any kind of output on the console screen. Once we call this function, then it is going to share, not share, output the thing that is inside of it, or whatever the functionality of that function is, he is going to do it right away. Now my question is from you guys is that, what if I call it 2 times? Does it run 2 times or output 2 times, or it will give an error if I am going to call it 2 times? Now let's see. This is how we are going to call a function. Name of the function, parenthesis and semicolon. My question is from you, if I am going to call it 2 times, let's see what will happen. It is going to give you this type of output 2 times. It doesn't matter how many times you are calling, it is going to provide you whatever its functionality is. Its basic purpose is to return the function or whatever it value it is going to output it on the screen. Whether you are going to call it 1,000 times, it is going to do its single task if you are assigning it to do so. Okay, here you can see I am taking a function, I am talking function. So I hope you get the idea now. ये तो बात थी फंक्शन कैसे बनाते हैं. तो आइडेंटिफायर का तो आपको पता है, ये 2 टाइप्स के, एक वेरिएबल को कहते हैं और एक कांस्टेंट को कहते हैं. नेम गिवन फॉर वेरिएबल इज नोन एज आइडेंटिफायर. अब बात आती है प्री प्रोसेसर कॉन्सेप्ट की. प्री प्रोसेसर आपको पता है कि जो पहले से ही चीज़ कंपाइल हो चुकी है, ये कंप्यूटर को पता होता है कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या पड़ा हुआ है. जैसे ये हैश एक प्री प्रोसेसर, ठीक है, कीज़ है, और इसके साथ वाली जो पड़ी है ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर मेरे पास कुछ कोड्स मौजूद हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने कोड में. फिर यूज़र नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसके अंदर भी कुछ इसी तरह के
मॉड्यूल्स और कोड्स पड़े हुए हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ. ऑलराइट. अच्छा, इसके बाद चीज़ आती है कि फंक्शंस विद पैरामीटर. पैरामीटर के दो नाम है, एक हम कहते हैं आर्गुमेंटन या आर्गुमेंटेरियन कह सकते हैं, या पैरामीटराइज्ड फंक्शन. ठीक. अब पैरामीटर से क्या मुराद है वो हम देख लेते हैं. अब ये फंक्शन है ना, पैरेंथेसिस के अंदर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ जिस तरह इंट रोज और इंट कॉलम्स. तो ये मैंने क्या पास कर दिए, कॉलम्स. इनको मैं इस्तेमाल करके अपने फंक्शंस के अंदर काम करूँगा. अगर आपने लैब 3 देखी हो या मैं सर ने समझाई थी तो आपको बेहतर अंदाज में समझ आएगी कि ये किस तरह से पैरामीटर्स काम करते हैं. ठीक. इन्हीं को हम इस्तेमाल करके मेन फंक्शन में अपना काम करते हैं. अब क्या हो, प्रोटोटाइपिंग का थोड़ा सा आपको समझा दें ताकि आपको ये पता चले अगर हम बॉटम में कभी फंक्शन लिखते हैं तो इससे क्या नतीजा अखज़ होगा. ये मैं कर देता हूँ ऐसे. ठीक. अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे एरर रहेगा. ठीक है. अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं आया. इधर अगर मैं इसको करता हूँ जनाब ये कि मैं वही हूँ, आई एम टॉकिंग फंक्शन. ठीक है. ये बात इसे मैंने कर दी और अब इसे मैं कॉल करने जा रहा हूँ. इधर से वर्ड नहीं करेंगे फंक्शन और इसको मैं कॉल करता हूँ. बट इट इज़ गोइंग टू गिव मी एन एरर बिकॉज इट डजंट recognize वेयर फंक्शन is actually declared. I am now for this situation I declare this function after the main function which is bottom at the bottom. So now for this thing we are going to prototype. Now what we are going to do, reference. We need to give reference of this function. Now this is prototyping. Now it is not going to give any kind of error. It will run smoothly. So this is how it is done. I hope now you get the idea what I meant by prototyping and referencing. Now you know exactly what it is. The picture of prototyping is clear in your mind now. What is meant by scope of identifier? Before that, here is another keyword which is going to use for constant values. It is also hash, like this. Define and a constant value like pi and something like that. It is also mentioned in your handouts. Refer from there. If you have any query or doubt, you can tell me. I am here to help you out, or I am going to clear your doubts. Scope of functions are two. There are two types of scope of identifiers. One is globally, which can be called anywhere in the program. If you are in the middle of 1000 line, you need to call the function, you can call it easily. This is called global function. But the second type, internal or local, it is restricted form of call. It is only call inside that function or that program only. If you are outside of that or you have declared something new, then you are not, it is not going to work there. अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ. ग्लोबल को कहीं भी आप बुला सकते हैं. ठीक है. किसी भी जगह से अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है बुलाने की या उस फंक्शन को कॉल करने की. लेकिन लोकल की कुछ हदूद होती हैं. वो हदूद ये कहती है कि जैसे अब इस बॉडी के अंदर मैंने कोई चीज़ लिख दी है ना, तो मुझे इसके अंदर से उसे कॉल करना पड़ेगा. ये इंटरनल या इंटरवल या लोकल इसे हम कहेंगे स्कोप है आइडेंटिफायर का. ठीक. ताकि जब कॉल करें तो क्या हो, वो इसके अंदर ही रन करे. इससे बाहर हम इसे बुला ही नहीं सकते. ग्लोबल तो बाहर भी प्रोग्राम से अगर क्या कॉल करें तो रन करेगा, अंदर भी करें करेगा, वो हर जगह से करेगा, इसीलिए उसका नाम ग्लोबल है. ठीक. अब एक चीज़ आती है कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय रेफरेंस मीन द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल. नो, कॉल बाय रेफरेंस मीन द एड्रेस ऑफ दैट आइडेंटिफायर इज स्टोर्ड with the use of AND symbol. This is the symbol of call by reference. What is meant by call of reference? Let's see.
अब अगर आपने एड्रेस देखना है ना किसी भी नंबर का, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इंट एज आप कर दें 26। अच्छा, ये तो आपने मेन फंक्शन में लिखी है, लेकिन अब इधर मैं एक और डेटा टाइप लिखता हूँ एज के नाम से, और इधर मैं एज डिक्लेयर करता हूँ 30। लेकिन जब मैं आउट करूँगा, ठीक है, एज को, तो क्या होगा, सिर्फ ये जो 26 है ये मेरी स्क्रीन पे आएगा। लेकिन क्या होगा अगर मुझे फंक्शन वाली एज करनी हो, ठीक, तो इस वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। अब डिफरेंट हो गया, बस एरर नहीं देना। क्या कह रहे हैं, it is not declared, alright, here you go। इसको मैंने एंड दे दिया, ठीक है। लेकिन अब मुझे अगर 30 को लेके आना है, तो what I need to do is I'm going to give 2 columns after the name, before the name of variable, here you go, and change this. Why I'm going to change it into capital, because here in the function it is assigned in this different identifier, which is different from this. As you know, C++ is case sensitive. Case sensitive means this variable is another thing and this is another. These two things are not the same, are treated as same. This is meant by case sensitive. अब क्या होगा कि मेरे पास आएगा एज लिखा हुआ, ठीक है। ओके, अगर इसको मैं स्मॉल सी रिप्रेजेंट करूँ, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, 1, I knew it, something is going to work। 1 ही आएगा। अगर मैं इसको एज की जगह में लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, ईयर लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ईयर के साथ करता हूँ, और अब आपके पास आएगी सही चीज़ है। अब ये मेरे पास मसला कर रहे हैं, void talk age let's see what it is going to do। age has not been declared, तो एज डिक्लेयर्ड नहीं हुई, ठीक ठीक। इसको मैंने डिक्लेयर करने के लिए क्या करना चाहिए, ऑलराइट, दोनों की तरफ तो मैंने इसको किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, इसे मुझे खुद ही सही करना पड़ेगा। अभी मुझे ChatGPT के अलावा कोई ऑप्शन ऐसे मेरे पास छोड़ा नहीं है। खैर, ज़िंदगी का हिस्सा है, गलतियाँ तो होती हैं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हम लोग परफेक्ट नहीं हैं। फिक्स द कोड एरर, जो भी है बस तुम फिक्स करो, छोड़ो स्पेलिंग्स को। तो मुझे ऊपर अलग ऐसे करना पड़ेगा, तो मैं ये गलती कर रहा था। हो जाएगा भाई, नो वन इज हियर, ओके। तो फंक्शन के अलावा मुझे करना पड़ेगा जैसे इंट एज इक्वल्स टू 30। अब इसने काम करना है, होप सो, यस। ये एक मैं गलती कर रहा था, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी अगर ग्लोबल वाले को हमें बुलाना हो, ठीक। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है पैरामीटर के साथ, वो डिस्कस करते हैं। फंक्शंस विद
इसका फ़ायदा भी होता है, ठीक है। अगेन मैं टॉक का फंक्शन ये दफ़ा मैं ले लेता हूँ गर्ल्स का फंक्शन, ठीक है, और इसको मैं डाल देता हूँ नेम पैरामीटर के तौर पे ऐसे। अब ये जब मैंने डाला, ठीक है, इसकी डेटा टाइप मैंने डिक्लेयर की नहीं, तब मैं डिक्लेयर करता हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि नेम जो वो स्ट्रिंग होना चाहिए ऐसे, ठीक। अब इस मेन फंक्शन में मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ। किसे कॉल करूँगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गर्ल्स को मैंने कॉल करनी है। गर्ल्स को कॉल करने के बाद नाम डालना है मुझे, जैसे मेरे पास आ जाता है, क्या नाम लिखें, ज़्यादा लिख देते हैं एक बार। इसका फ़ायदा ये है कि डिफरेंट नेम से आप इसको कॉल कर सकते हैं, पैरामीटर्स का ये फ़ायदा है। अगली दफ़ा आप सारिया को बुला लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, कायनात को आप बुला सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने इसको आउट ही नहीं किया। तो इस तरीके से यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, करेक्टर आउट करना है, किसको, कंसोल आउट करने के बाद माय नेम इज़, ये फिर ये पैरामीटर को कॉल किया, पैरामीटर के नेम और एंड लाइन। अब आपके पास इस कोड ने रन करना है, here you can see, ठीक। तो this is how you are going to use parameters। अब रिकर्जन क्या है, एक तो उसने जो बात बोली है वो थोड़ी सी पेचीदा है, वो मैं आपको बताऊं तो आप बोलेंगे यार ये पता नहीं क्या कह रहा है, सही। अब जो पेचीदा किस्म की बात है ना, थोड़ा सा आपको मैं बताने लगूँ। रिकर्जन कहते हैं वो फंक्शंस जो चलते ही रहते हैं, जो रुकते कभी नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स, जो उसने बात की हुई है हैंडआउट्स के अंदर। बट व्हाट रियली इज रिकर्जन इज solve a big problem by breaking it into smaller problem. Think like this. How do you think and what do you think? Now let's me clear this. You don't solve everything at once. First of all, you have a code in front of you. What you are going to do, you are going to analyze it first. Okay, what is you need to do, analyze it first. After analyzing, you come to know that this big problem has smaller parts which are known as modules. You need to convert these bigger parts by breaking it down into smaller problems or portions. After that, you need to solve this like other problems. There are two things involved. First is base case. Okay, इसमें बेस केस और दूसरा एंड टर्मिनेटिंग कंडीशन इन्वॉल्व होती है। बेस कंडीशन एंड टर्मिनेटिंग, इट इज़ द स्टॉपिंग पॉइंट ऑफ रिकर्जन व्हिच इज नोन एज बेस कंडीशन। नाउ इंस्टेंस को छोड़ दें अभी। अब एक बात आपके सामने मैं रखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा रिकर्जन क्या है। अब एक फैक्टोरियल प्रोग्राम है ना, रुकना तो है ना उसने कभी कभी, आपने देखना है कि स्टार्ट किधर से होगा। बेस कंडीशन उसकी क्या है, जो 5 है, बल्कि जो बेस कंडीशन है स्टॉपिंग पॉइंट है वो 1 तक जाने है उसने, और उसके बाद उसने क्या वो नहीं करना। और ये जो रिकर्जन चीज़ होती है ना, ये ख़ुद ही अपने आप को कॉल करती रहती है, ठीक है। रिकर्जन इज़ कॉल इटसेल्फ, इट डजेंट मैटर कि ये ख़ुद से ही इसको कॉल करती रहती है। तो ये रिकर्जन होता है कि हम बड़े मसलों को छोटे छोटे मसलों में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो एक ऐसा वक्त है कि जिस वक्त उन्हें रुकना है तो वो रोकते हैं। किसके ऊपर वो रुकेंगे, ये डिपेंड करता है बेस कंडीशन के ऊपर। अगर बेस कंडीशन को आप कुछ भी स्टॉपिंग पॉइंट देते तो वो इनफाइनाइट लूप की तरफ चला जाएगा और वो फिर रन करते ही रहेगा, कभी उसने रुकना ही नहीं है।
ठीक है। एरेस की भी मैंने बात कर दी, अब एरेस को लिखते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं ज़रा। एरे लिखने का बड़ा आसान तरीका है जनाब, इस तरह। ठीक है, अब आपने अच्छा एक बात याद रखनी है, जिस टाइप को आप चूज़ करेंगे ना तो उसी टाइप को आपने ये भी लिखना है। जैसे अभी मैंने स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम की एक एरे बनाई, इसमें कितने मैं एलिमेंट्स रखूँगा 3। इसको मैं कर दूँगा जनाब वाला इक्वल्स टू, और आप करली ब्रैकेट, जितने एलिमेंट्स आपने लिखने हैं और लिखें। मैं अपने नाम से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये एरे लिखने का तरीका। साथ के बाद मैं लिख लेता हूँ अपने कुछ दोस्तों के मैं नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, एक मेरा दोस्त आ जाएगा अयान, ठीक, और एक मैं लिख देता हूँ जनाब समी। ठीक है, ये जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनके मैंने नाम लिख लिए। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने सेमी कॉलन लाजमी डालना है। एरे बन गई। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने ये जो स्ट्रिंग वाली बनाई है ना, इसमें सिर्फ आप स्ट्रिंग्स वैल्यू ही लिख सकते हैं। ठीक, अब एज वाली में आपने डेटा टाइप रखी है ये, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। तो आपने थ्रू आउट जितनी आपने वैल्यूज़ डालनी एंट ही हैं, ये नहीं है बीच में जाके वो फ्लोट हो जाएगी। सर मैंने बात समझाई थी। ये करने के बाद आप इक्वल्स टू अगर एम्प्टी ब्रैकेट डाल देते हैं करली वाली, तो इसका क्या मतलब है कि ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को रख सकती है जिसके अंदर पड़ी हुई हैं। इधर तो हमने 3 वैल्यूज़ बता दी तो उसे पता है 3 ही है, बट एम्प्टी वाली अनलिमिटेड वैल्यूज़ को वो करती है, कंसिडर करती है। ठीक है, तो ये तो बात है। ठीक, अब पॉइंटर्स का भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको, पॉइंटर कैसे लिखते हैं। ये क्या किया हुआ है मैंने, इसको नीचे लेके जाओ ऐसे, रिटर्न 0 करो ऐसे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट घबराइएगा ना, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी सारी चीज़ों की। अब बात हो रही है पॉइंटर की, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। फिर 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा एरेज पॉइंटर्स के। ठीक है, फिर आप लोगों की छुट्टी। पॉइंटर कहते हैं, किधर गया, A pointer stores the memory address of the identifier so we can know where it is present inside the memory। ये जो मैंने बात बोली ये मैंने डिफ़ाइन किया पॉइंटर को। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, पॉइंटर लगाने से पहले आपने ये वाला सिंबल लाजमी लगाना होता है, बिफोर पॉइंटर। ठीक है, अब मैं लिखने लगा हूँ, अब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। जैसे कि हमारे पास इंट ए है, ठीक, इसको मैंने वैल्यू जनाब दे दी 20, वट एवर यू लाइक टू असाइन, इट्स अप टू यू। फिर स्ट्रिंग मैंने वाई लिया और इस वाई को मैंने क्या दे दिया जनाब, अपना नाम दे दिया ऐसे। ठीक हो गया। फिर इसके बाद बात आती है कि अगर पॉइंटर को मैंने करना है, ठीक है, इधर मैंने ए लिखा था, तो अब इसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। पॉइंटर की एरे की डेटा टाइप ये थी, ये एरे को छोड़े नॉर्मल हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें एरे शेरे का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये नॉर्मल जैसे वेरिएबल हम बनाते हैं। तो अब पॉइंटर की डेटा टाइप भी आपके पास ए पॉइंटर। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, इससे पहले आप ये साइन लिखते हैं, इक्वल्स टू आप कर दें, इस तरह डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो ए पी है किसके बराबर हो, ए के। ठीक है, और अब आपने इसकी मेमोरी एड्रेस देखना है तो आपने ये वाला सिंबल डालना है। ठीक, ये डालने के बाद आप कंसोल आउट करें, ए पी करें, एंड लाइन पर जाएं और ये कर दें। अब होगा क्या, ये आपको दिखा देगा मेमोरी एड्रेस, और ये हर प्रोसेसर और कंप्यूटर वेरी करते हैं, डिफरेंट मेमोरी एड्रेस दिखाएगा।
ज़रूरी नहीं है जो मेरा ये दिखा रहा है वो आपको हो। ठीक हो गया। तो ये जो तरीका था कि किस तरह से हम किसी भी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन देख सकते हैं कि वो क्या किधर पड़ी हुई है या वो क्या है, ठीक है, पता कर सकें। जिस तरह आप अपने दोस्त को फ़ोन करके उसके घर का पता मालूम कर रहे हैं, तो पॉइंटर्स भी वैसे ही हैं। इनको अपने दोस्तों की तरह समझें। अच्छा, अब सवाल आता है कि सम ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर। एरे के अंदर जितने भी नंबर उनका हमने सामने निकालने हैं, क्या इस्तेमाल करके पॉइंटर। ठीक है, ये मैं करवाने लगा हूँ। तो पहली जो मेरे पास है एरे के नाम से, इसमें कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 5, बराबर हो जाएंगे 10, 20, 30, 40 और 50। 5 पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो 5 एलिमेंट हैं इनके मैंने सामने निकालने हैं, क्या यूज़ करके पॉइंटर। तो जो डेटा टाइप मैंने ऊपर इस्तेमाल की पॉइंटर की, मैं वही इस्तेमाल करूँगा, पॉइंटर PTR के शॉर्ट फॉर्म। कैसे बराबर हो एरे के। ऐसे होगा क्या, पॉइंटर ये फर्स्ट एलिमेंट पे मूव करेगा। जिस तरह ये फर्स्ट एलिमेंट 10 है ना, तो इसके ऊपर ये चला जाएगा, ठीक है। इसी बार सम मैंने निकालना था, तो मैं सम को इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से। अब क्या हुआ, लूप लगाएंगे फॉर वाली, जो हमें बताएगी कि गिनती कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है। इस केस में 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सम है हमारे पास। अब ये मुझे लेके जाना है 5 से नीचे नीचे 4 तक, ठीक है। और इसलिए इसको मैंने ये किया, अगर मैं इक्वल्स का साइन डालता है तो इसने मुझे लेके जाना था डायरेक्ट 5 के बराबर बराबर, बट मुझे 4 तक लूप चलानी है। अब इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, सम को हमने प्लस इक्वल्स करवा देना है मल्टीप्लाई बाय PTR प्लस आई, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है, ये चीज़ हमें क्या लेके जाने में मदद करेगी, आप ये समझें। PTR पॉइंटर एरे के बराबर है जो भी 10 पे है। जब ये लूप चलेगी ना, इसमें पहला डिजिट 10 जाके स्टोर हो जाएगा सम के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये वाली चीज़ इसको नेक्स्ट मूव करवाएगी। अब वो चला गया 20 के ऊपर, ठीक है। जब वो 20 के ऊपर चला गया, तो वो वाली जो चीज़ है वो इसमें स्टोर होगी। फिर वो नीचे आई, 10 पहले से मौजूद था, वो सम हुआ उसका, और इसके अंदर उसका सम 30 स्टोर हो गया। फिर इसी तरह से इसने लेके चलने आगे, थर्ड पोजीशन पे वो मूव कर गई, फिर वो आया, फिर इसने स्टोर किया जो पहले इसमें रिज़ल्ट पड़ा हुआ था ऐड होने के बाद, फिर इसने इंक्रीमेंट करके उसे आगे ले गया, फिर 40 एंड सो ऑन। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। ये आपने काम करने के बाद लूप से बाहर आ जाना है और लिख लेना है सम इज़, ये सम इक्वल्स, ठीक है। सम इक्वल्स लिखने के बाद थोड़ा सा आपने इसको टाइम दें ये, और इसको कर दें सम। अब क्या होगा, मेरे पास इन सारों का वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट में ख़त्म करूँगा, मेरे पास मामला ठीक हो जाएगा। ऐसे और ऐसे, ये लें जनाब। तो इसने कोई एरर नहीं देना। तो 150 सम आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं 150 ही आना था या नहीं। 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 110, 10 में 20 तो 130, नहीं 120, 30, 40 एंड 50, ठीक। तो बिल्कुल 150 हमारे पास आंसर आ गया। ये आप कैसे सम निकालते हैं पॉइंटर्स का, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब एक और मैं आपको करवाता हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, और फिर रिवर्स के बाद ख़त्म, ठीक है। रिवर्स तक ही करवाता हूँ, पहले रिवर्स वाली करवाता हूँ, वो थोड़ी सी समझने वाली है। तो इस वजह से रिवर्स एन एरे यूजिंग पॉइंटर्स। तो इंट डेटा टाइप एरे लिखा मैंने, ठीक, और इसको मैंने डाल दिया, कितने मुझे 5 वैल्यूज़ हैं, इक्वल्स ये 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसको मैंने रिवर्स करना है,
तो अब मैं पॉइंटर इस्तेमाल कर लूँगा पहले तो। अच्छा, इससे पहले कि मैं पॉइंटर को ये वैल्यू असाइन करूँ, मैं एक वेरिएबल असाइन करूँगा स्टार्ट के नाम से, जो पॉइंटर वेरिएबल होगा वो किसके बराबर होगा, एरे। ठीक, अब एक और मैं पॉइंटर करूँगा एंड के नाम से, क्योंकि मुझे ये एंड वाली वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं एरे में क्या प्लस करूँगा, +4, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एरे की स्टार्टिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और +4 से मुझे 5 मिल जाएगा, तो मुझे लास्ट वैल्यू चाहिए थी, तब मैंने एरे +4 कर दिया। ठीक, अब स्वैपिंग करेंगे हम। स्वैपिंग करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि टेम्प वेरिएबल के अंदर आप जो पॉइंटर की स्टार्ट वैल्यू है वो स्टोर कर दें, और जो स्टार्ट वेरिएबल है उसके अंदर आप एंड की पॉइंटर की स्टोर कर दें, और जो एंड पॉइंटर है उसके अंदर आप टेम्प्ट की वैल्यू स्टोर कर दें। सीक्वेंस आपने ऐसे याद रखना, पहले टेम्प्ट, फिर स्टार्ट, फिर ये चीज़ नीचे रिफ्लेक्ट होगी, फिर फर्स्ट के बाद लास्ट वाली आएगी, फिर ये नीचे रिफ्लेक्ट होगी और ये इस तरह आ जाएगा, ये यूं और यूं सर। ठीक है, डायगोनल एक शेप बन रही है। स्वैपिंग कर दिया हमने। अब एक को हमने आगे की तरफ चलाने हैं और एक को पीछे की तरफ। स्टार्ट को हम आगे क्यों लेके जाएंगे, ताकि आगे नेक्स्ट वैल्यू पे वो जाता जाए। ठीक है, और एंड वाले को वापस क्यों लेके आएंगे, क्योंकि लास्ट से वो पीछे की तरफ आएगा। बात क्लियर हो रही होगी मैं क्यों कर रहा हूँ। अब हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप कहती है कि इंटीजर डेटा टाइप आई को इनिशियलाइज करवाओ जो कि बराबर हो 0 के। ठीक है, अब आई जो है ये है 0 के बराबर, आई इज़ लेस देन 5 दिस, और आई को इंक्रीमेंट करो दिस। ब्रैकेट खुलने के बाद हम इसे कर देंगे जनाब कंसोल आउट और एरे। ये अब इससे होगा क्या, एरे में मेरे पास पड़ा है 1। ठीक है, और अब ये ब्रैकेट इनटू वाई से क्या मुराद है, इस बारे में आपके ऊपर रोशनी डाल देते हैं। ये कहीं मैंने लिखा हुआ भी था, ये मैंने कहीं भूल जाता है ना, पता नहीं मैंने किधर लिखा था। अभी कहीं लिखा होगा फिर मैंने। इस सिनेरियो में मेरे पास जो एरे है, ठीक है, अच्छा ये जो है ये कहाँ तक जाएगा, 5 तक। एरे की जो वैल्यू है वो अपनी जगह पे ही सेम रहेगी, ये जो चीज़ है ये चेंज होगी और ये से लेके जाएगी नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर। ठीक, और इसके बाद हम कर देंगे ये, फिर मैंने इसको कर देना सेमीकोलन। अब कहता है फॉर एंड इट इज़, ओ ये चीज़ मैंने लिखी है इसकी वजह से गड़बड़ हुई है, बाकी कोड ठीक है। 5 2 3 4 एंड 1, थोड़ा सा सीक्वेंस इस तरह किया, पहले 5 करना कीजिए, फिर 4 3 एंड 2 एंड 1 एंड सो ऑन। तो अगर मैं सारा कुछ ठीक लिखने के बाद भी अगर ना आए तो क्या ही कह सकते हैं। बस मैं 1 करूँ, देन व्हाट विल हैपन, देखा 1 से स्टार्ट हुआ है तो 0 तक ही। आई की जगह अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, तो इसने काम ही नहीं करना। ठीक ठीक ठीक, बेहतरीन। तो ये कोड था कि किस तरह से हम रिवर्स इस्तेमाल करते हैं उससे, ठीक है, पॉइंटर का इस्तेमाल करके। अब लास्ट करवा देते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग पॉइंटर।
चलें जनाब, मैं दोबारा से वही नाम रखता हूँ इसमें एलिमेंट सेम, ताकि आपको ज़रा लॉजिक मेरे साथ साथ रहें, ठीक है। ये 5 वैल्यूज़ लिखने के बाद अब इसको मैंने क्या काम देना है, ये काम देना है कि पॉइंटर, जिसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। और इसको मैं बराबर कर दूँगा एरे की, ताकि ये फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर ले। जब इसने फर्स्ट एलिमेंट के पास पॉइंटर लगा दिया तो मैक्स वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, और मैक्स वेरिएबल में मैंने पॉइंटर की जो फर्स्ट लोकेशन या एलिमेंट थी, ठीक है, वो मैंने स्टोर करवा दी। वो जब स्टोर हुई तो मैंने ये एज्यूम किया इस स्टेट में, अच्छा मैंने इसमें ये एज्यूम किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वही मैक्सिमम है, हालांकि वो बड़ा नहीं है, बट हमने एज्यूम कर लेना है। फॉर लूप का इंतखाब करेंगे, इंट हम करेंगे आई जनाब को, और उस बार 1 से स्टार्ट होगा और इसको हम ले जाएंगे 5 तक, ठीक है, क्योंकि 4 ही एलिमेंट है, 0 से अगर गिने। आई को इंक्रीमेंट ब्रैकेट की पैरेंथेसिस खुलने के बाद करली खोल जाएगी, और करली ब्रैकेट में इफ़ कंडीशन आएगी। कंडीशन कहती है कि जो PTR ये है प्लस आई क्या हो लेस दैन ग्रेटर दैन, बल्कि ग्रेटर दैन हो मैक्स से, तो क्या कर दो वो हम देख लेते हैं। मैक्स इज इक्वल्स टू कर दो नेक्स्ट की जानिब से मूव, ठीक है। नेक्स्ट की जानिब से मूव करने के लिए ये आपको चीज़ हमेशा लगानी पड़ेगी प्लस आई, ताकि वो नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर मूव करे, क्योंकि इसे अपडेट भी करने और आगे भी न्यू पहला होगा दूसरा तीसरा इस तरह कंपेयर करेगा, उसके बाद ही आगे। ये करने के बाद आप इधर से बाहर आ गए, इधर से बाहर, इधर से भी बाहर आ गए, और नीचे कंसोल आउट में जाके आपने लिख दिया मैक्सिमम, और कैसे आप कर देंगे मैक्स को आउटपुट, ठीक है। अच्छा ये अब मज़े की बात है, मैंने यहाँ पैरेंथेसिस का सेमी कॉलन नहीं लगाया, इसलिए रन नहीं हुआ। अब ये है कि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू जो कि 5 है, तो ये हम मैक्सिमम वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके। तो आज के लिए काफ़ी है जी, ये सारी चीज़ें थी फॉर लूप के बताया, फंक्शंस, एरेज एंड पॉइंटर्स। अब आप लोग भी मेरे जो दूसरे ग्रुप वाले उनके बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए अब नेक्स्ट वेडनेसडे को आपको मैं 2D एरेज का कॉन्सेप्ट्स करवाऊँगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।